So, if you want to buy a house in a city like Delhi or Mumbai, what are your options? In a small city like Bhopal or some district, you might have simply gone ahead, bought a piece of land, and would have constructed a house for yourself. But doing the same thing in Delhi or Mumbai is difficult. That's why people go to builders. These builders construct projects. In those projects they construct like hundreds of flats. You can buy one of them. So this in this process you become a home buyer. So in a city like Mumbai, Delhi, or in all the big cities, people are buying homes from these builders. So now, how to go about this whole thing? आप उनसे घर कैसे खरीदें, घर खरीदते वक्त किन कागज़ों का ध्यान दें, कागज़ बन भी गए हैं, घर खरीद भी लिया है, फिर भी बिल्डर आपको घर नहीं दे रहा है. So these are the multiple issues which come up when you are dealing with a builder. So in this discussion we will try to talk about these issues in a very simple manner. The legal information which I will share with you in the talk will be very simple, and I hope it will help you in day-to-day transactions. अभी रिसेंटली होम लोन्स का एक एनालिसिस किया गया. उसमें पाया गया कि आज के डेट में जो लोग घर खरीद रहे हैं वो काफ़ी यंग लोग हैं. बेसिकली जो एक टर्म होता है मिलेनियल, मतलब जो लोग 1981 से 96 तक पैदा हुए हैं, दे आर कॉल्ड मिलेनियल्स. Those people who are comparatively very young. Earlier people in 40s used to buy a home and apply for home loans. Now those young people are applying for home loans and buying homes. Why this is happening? This is happening because of COVID. COVID taught people that their home is more than a place to sleep and eat. It showed them that this place is capable of giving a space wherein you can work, wherein you can grow, prosper, fulfill your aspirations. So people, young people are buying home for the sake of stability, and with a purpose that if something like COVID comes again, they have to work from home, then this home can provide them a space wherein they can work and prosper. So people are investing in homes, particularly young people who are about 40% of this country's population, which is a huge number. So there is a lot of investment in the real estate sector, new boom. So what are the factors, what are the points which you need to keep in mind when you go ahead and invest a large chunk of your income and savings in such houses? पहली चीज़ तो है कि आपको कागज़ों का ध्यान रखना चाहिए. कागज़ कैसे होने चाहिए? पहली बात, जिस बिल्डर के पास जा रहे हैं थोड़ा उसका आप बैकग्राउंड देख लें. इफ़ you are a reliable builder, then you must be registered with Real Estate Regulatory Authority. सबसे पहले बिल्डर का रेरा रजिस्ट्रेशन देख लें. दैट थिंग कैन बी चेकड ऑनलाइन. बहुत आराम से आप ऑनलाइन उसको डालो, वो आ जाएगा. वंस यू हैव वेरीफाइड द क्रेडेंशियल्स ऑफ द बिल्डर, देन यू गो टू द बिल्डर, यू सी द प्रोजेक्ट, और जो भी वो यूनिट आपको बता रहे हैं उसके लिए यू फिल अ एप्लीकेशन फॉर्म एंड गिव अ एप्लीकेशन विथ सम टोकन अमाउंट टू देम. उसका एक कॉपी रखें. आफ्टर दैट जो आपकी डिज़ायर्ड यूनिट थी उसके बेसिस पे कोई सिमिलर सी या सेम यूनिट आपको अलॉट की जाएगी. द डॉक्यूमेंट विच अलॉट्स दैट स्पेसिफिक यूनिट ऑफ योर चॉइस इज कॉल्ड अलॉटमेंट लेटर. आपके पास अलॉटमेंट लेटर आ गया, उसमें आपका यूनिट का नाम लिखा होगा, प्रोजेक्ट का नाम लिखा होगा, और जो सारी स्पेसिफिकेशंस हैं वो सारी स्पेसिफिकेशंस अवेलेबल होंगी. तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. और इस डॉक्यूमेंट के बाद जो आपके पास लास्ट डॉक्यूमेंट आता है दैट इज़ फ्लैट बायर एग्रीमेंट. उस एग्रीमेंट में सारे स्पेसिफिकेशंस होते हैं कि आपके घर की यूनिट का नंबर क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, वो यूनिट बन के किस तरीके से आपको किस साल में किस महीने में मिलेगी, और आपकी लाइबिलिटीज़ भी होती हैं कि आपको इतना पैसा देना है, 40 लाख रुपए देने हैं, हर महीने में 1-1 लाख रुपए करके देना है, जब पूरा घर बन जाए तो इतने पैसे देने हैं. तो बेसिकली इट डिफाइंस योर राइट्स एज वेल एज लाइबिलिटीज़. कुछ बिल्डर्स हैं जैसे कि अजनारा, उनका जो अलॉटमेंट लेटर होता है और फ्लैट बायर एग्रीमेंट होता है वो एक ही होता है. तो डॉक्यूमेंट का नाम क्या है उससे ज़्यादा मायने रखता है उस डॉक्यूमेंट में लिखा क्या है, आपकी राइट्स लाइबिलिटीज़ क्या है, आपको कितना पैसा देना है, आपको घर मिलना है, कब मिलना है, कैसे मिलना है. ऑल दोज थिंग्स शुड बी रिटन ऑन दोज डॉक्यूमेंट्स. एक बार कागज़ पूरे हो गए, आपने पैसे दे दिए, उसके बाद बात आती है आपके राइट्स की. जैसे कि माना कि आपने 2012 में एक बिल्डर से घर खरीदा और उसमें 40 लाख रुपए देने की बात लिखी थी, 2 साल में आपने वो दे दिए. उस एग्रीमेंट में ये भी लिखा था कि 3 साल में यानी 2015 में वो घर आपको मिलना भी था. बट द बिल्डर इज़ नॉट गिविंग यू द हाउस, नीदर ही हैज़ कंस्ट्रक्टेड
properly on the project site. Now you are aggrieved. So as a reasonable course, you will write emails to the builder asking for the house. You will write letters. You will visit their office. But in case the builder is not listening you and he has breached the terms set by both of you, what are your remedies? रेमेडीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक कॉमन सिटीजन को जब दिक्कत होती है तो वो कोर्ट ही जाता है। तो आपको जो यूजुअल सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास दो स्पेसिफिक डेडिकेटेड फॉरम्स हैं जो आपकी समस्या को बड़े स्पेशलाइज तरीके से सुन के बहुत जल्दी डिस्पोज कर सकते हैं। पहला तो है कंज्यूमर फॉरम। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ने कंज्यूमर फॉरम्स बनाए, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉरम, स्टेट कंज्यूमर फॉरम, नेशनल कंज्यूमर फॉरम। 2019 का एक एक्ट आया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसने पुराने एक्ट को रिपील कर दिया, बट काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ हैं। कंज्यूमर कोर्ट्स जो है वो कंज्यूमर इन जनरल को डील करते हैं। अगर आपने कोई चीज़ खरीदी उसमें डिफ़ॉल्ट है जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 में डिफाइंड है, अगर आपने कोई चीज़ खरीदी और उसमें कोई डेफिशिएंसी है जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 में डिफाइंड है, तो आप अपना ग्रीवांस कंज्यूमर फोरम के सामने रख सकते हैं और वो आपको सुन के आपकी बात को समझ के एक जजमेंट पास करता है और उसके अकॉर्डिंग आपको रिलीफ देता है। तो बिल्डर ने आपको घर 2015 में देना था, आपने पैसे दे दिए, नहीं दे रहा है, कंज्यूमर फोरम में आप कंप्लेंट डाल सकते हो कहते हुए कि जी मुझे मेरे पैसे जिस दिन से दिए थे उस दिन से वापस कराओ, आई वॉन्ट रिफंड ऑफ माई मनी फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट। कंज्यूमर फोरम वो चीज़ सुनने के बाद बिल्डर को करा देता है। दिस हैपन्स, वो आपका पैसा पूरा वापस करा देता है या आपका घर आपको डिले इंटरेस्ट के साथ दिला देता है। ये पूरी प्रोसेस कंज्यूमर फोरम में हो सकती है। इसी के साथ रियल एस्टेट सेक्टर्स में आती हुई डिफ़िकल्टीज़ को देख के हमारी पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम है रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। ये जो रेरा एक्ट है ये कंज्यूमर फोरम जैसा ही काम करता है, बट ये कुछ ज़्यादा भी करता है। जो रेरा है वो एडजुडिकेशन तो करता ही है। सेक्शन 18 और 31 में टॉक्स अबाउट एडजुडिकेशन। आपको दिक्कत है, बिल्डर ने आपको घर देना था 2015 में, 23 में घर नहीं मिला है, आप कंप्लेंट फाइल करें, आपको रिफंड करा देगा या घर दिला देगा, जैसे भी आपकी डिमांड है वैसा करा देगा। बट उसके साथ साथ जो रेरा है, रियल एस्टेट अथॉरिटी है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी रखती है। तो अगर मैं एक बिल्डर हूँ, मैं एक प्रमोटर हूँ, तो मुझे अपना धंधा करने से पहले सबसे पहले जाके रेरा से एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर मैं रेरा से रजिस्ट्रेशन नहीं लेता हूँ तो मैं बिल्डर का काम नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं रेरा से रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहा हूँ, जो रियल एस्टेट एक्ट के सेक्शन 3 में मैंडेटरी है, तो सेक्शन 59 कहता है कि अगर मेरी प्रोजेक्ट की कॉस्ट 100 करोड़ है तो मुझ पे 10% का जुर्माना लग सकता है, 10 करोड़ की मुझसे जुर्माना वसूला जा सकता है। तो रेरा के पास दो पावर है। रेरा एक टाइम पे होम बायर्स की, स्पेसिफिकली होम बायर्स की, जो प्रियम्बल है रेरा एक्ट की, वो कहती है कंज्यूमर्स इन द रियल एस्टेट सेक्टर। तो आपकी जो कंप्लेन है कि भाई मुझे घर नहीं मिल रहा, मुझे रिफंड दिला दो, मुझे घर दिला दो इंटरेस्ट के साथ, वो तो सुनेगी ही सुनेगी, बट उसके साथ साथ ये भी सुनेगी कि बिल्डर अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कंप्लाइंसेस कर रहा है नहीं कर रहा है। तो दो रोल एक साथ परफॉर्म करती है एंड दैट मेक्स रेरा वेरी इफेक्टिव एंड पावरफुल। तो अगर रेरा ने कोई ऑर्डर पास किया है, अब जैसे कि रेरा ने ऑर्डर पास किया कि आपको घर नहीं दे पाए जो 2015 में देना था 23 में, रेरा ने ऑर्डर किया भाई जिस दिन से पैसे दिए थे उस दिन से आज तक का ब्याज मिला के पूरा पैसा वापस करो, और बिल्डर इफ ही इज़ नॉट कंप्लाइंग विद द ऑर्डर, तो सेक्शन 63 में रेरा हैज़ द पावर टू इवन इम्पोज अ कॉस्ट ऑफ 5% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी 100 करोड़ का प्रोजेक्ट अगर बिल्डर बना रहा है तो उस पर 5 करोड़ तक की कॉस्ट लगा सकते हैं, उसके रजिस्ट्रेशन को रद्द कर सकते हैं। तो रेरा भी कंज्यूमर कोर्ट की तरह आपको रेमेडी देता है, बट रेरा के पास रेगुलेटरी पावर है, इसलिए वो बिल्डर को ज़्यादा कंट्रोल करने की ताकत रखता है। तो परेशानी की स्थिति में आप रेरा जा सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। और रेरा की अच्छाई ये है कि ये सेंट्रल एक्ट है और स्टेट स्पेसिफिक अपने रूल्स बनाते हैं और अपना अथॉरिटी बनाते हैं। उसकी अच्छाई ये है कि कुछ स्टेट्स ने, जैसे कि यूपी रेरा है, उन्होंने अपने बहुत अच्छे रूल्स बनाए एंड द होल यूपी रेरा वर्क्स ऑनलाइन। यू कैन फाइल योर कंप्लेन ऑनलाइन, your hearings happen online, the judgment comes online, you can file execution online, so everything happens online. You don't even need to step out of your home, you file everything online, you do the hearing online and you get what you deserve online. So RERA is trying to
update itself, modify itself as per the needs of the home buyer. तो अगर आप दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, कलकत्ता में और इंदौर में, भोपाल में कहीं भी बिल्डर से घर खरीद रहे हैं तो यू हैव योर राइट्स, यू डोंट नीड टू बी वरीड, ऑल यू नीड टू डू इज़ टू बी अ बिट कॉशियस। पहले देख लो बिल्डर फ्लाई बाय नाइट तो नहीं है, हीरा रजिस्ट्रेशन है, ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहे हो तो पूरे कागज़ रखते जाओ, अलॉटमेंट लेटर, फ्लैट बायर एग्रीमेंट रख लो, पैसों की रसीद रख लो। और जब बिल्डर देखे कि अपना काम नहीं कर रहा है, टर्म्स कंप्लाई नहीं कर रहा है, बिल्डर डिले कर रहा है, घर अच्छा नहीं बनाया है, ज़्यादा चार्जेस ले रहा है, देन यू सीक रेमेडीज़। या कंज्यूमर फोरम में जाओ या रेरा में जाओ, यू कैन सीक रेमेडीज़। रेमेडीज़ बड़ी सिंपल हैं, टाइम बाउंड डिस्पोजल है, तो योर इन्वेस्टमेंट इज सेफ। ऑल यू नीड टू डू इज़ टू डू अ स्मॉल रिसर्च एंड बी अ लिटिल केयरफुल। तो हैप्पी आई विश यू all the best for buying your home because everyone wants to have a home सबको स्टेबिलिटी देता है। सो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट। बाकी बिल्डर से ट्रांजैक्शन करना इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, लॉ चेंज हो गया है एंड द लॉ इज़ इन फेवर ऑफ होम बायर्स नाउअडेज। तो बी विदाउट फियर and go ahead and buy your home, just be a bit cautious, that's it.